Hi guys, this is Sunil Chauhan and you are watching SK Maths classes. Today we are going to start 8th class chapter 3rd, that is square and square roots. We have done already the basic of this chapter. Today we will start from the properties of perfect square. The properties of perfect square. Here the first property, a number ending with digit, and the digits are 2, 3, 7 and 8. 2, 3, 7 and 8. A number is ending with these digits is never a perfect square. यानी कि कोई भी नंबर जिस नंबर के आखिर में, यानी कि दो, या तो वो नंबर 2 पे एंड करता हो, या तो 3 पे एंड करता हो, या तो 7 पे एंड करता हो, या तो 8 पे एंड करे. अगर ऐसा कोई नंबर है जिसकी एंडिंग डिजिट, लास्ट डिजिट इनमें से कोई है, तो इट मीन्स वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, साथ साथ रिमूव करूंगा. 5372. नो नीड टू चेक दिस नंबर because there is a property, if a number ending with these digits will never a perfect square. Here you can see this number end on digit 2, so this will never be a perfect square. We can take 253. Other example, this number is ending with 3, so this will never be perfect square. Other number 958 end with digit 8, so this will never be perfect square. In the same way, if a number is end with digit 7, will never a perfect square. Is that clear? We are taking the second property, and the second is a number ending in an odd number of zeros. A number ending with odd number of zeros. मीन्स ऐसा नंबर जिसके आखिरी में जीरो की संख्या ओड हो, विषम हो. मीन्स yes, in this number there are 3 zeros and 3 is odd number, so this will never be perfect square. In other way, we can take 1530 only 0. Is that clear? Only one 0 is there and 1 is also odd, so this will never be a perfect square. In other way, 1051 0 0 0 0 and 0. So no need to count this 0, only the ending zeros you will count. Here 2 to 4 and 5 zeros, and 5 is also a odd number, so this will never be a perfect square. तो ये भी perfect square नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है. Is that clear? Taking the property number 3. And the third property is the square of even number is even. Square of even number is even. किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हम करते हैं, लेट वी स्टार्ट फ्रॉम 2. 2 का स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी 4. 4 का स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी 16. 16 का स्क्वायर करेंगे 256. किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं तो वी गॉट द इवन नंबर्स. इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन नंबर होता है. एंड द प्रॉपर्टी नंबर 4 इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड. Square of odd number is always odd. Odd number का स्क्वायर हमेशा odd होता है. For example, we are taking 3. 3 का स्क्वायर आपके पास 9. 9 is also odd. We are taking 9. 9 means 81. This is also odd. You can take any number. जिसका भी हम नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर वो इवन है तो उसका स्क्वायर इवन होगा, और odd है तो उसका स्क्वायर भी odd होगा.
Let me start the next property, that is number 5th. The square of proper fraction is smaller than the fraction. The square of proper fraction is smaller than the fraction. The square of proper fraction is smaller than the fraction. We are taking a fraction that is 2 by 3. This is proper fraction. In proper fraction, numerator is smaller than the denominator. So this is proper, and we got the square of this, that will be 4 by 9. 2 by 3 always be greater than 4 by 9, यानी कि 2 by 3 जो है वो 4 by 9 से हमेशा ग्रेटर होगा. ओके, बिकॉज इसका स्क्वायर जो है वो स्मॉल होता है. इज दैट क्लियर? एंड द नेक्स्ट नंबर 6. Number 6, for every natural number n, for every natural number n, every natural number n, we have, so what we have, look there, n plus 1 square plus n square always be equal to n plus 1 plus n. इसको ठीक से समझना है. देखिए क्या कह रहा है. फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई नेचुरल नंबर है n, अगर n प्लस 1 का स्क्वायर और n का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हम करते हैं तो नो नीड टू फाइंड द स्क्वायर. यू कैन डायरेक्टली n प्लस 1 एंड n को ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 36 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर. लुक देयर, we can write this number 35 plus 1 square plus 35 square. Okay, now look there, this condition is there, n plus 1 n means both are n. ये 36 था, इसको हमने तोड़ करके इसको पार्ट्स में लिख दिया है 35 plus 1, तो this is n. So now we got this situation, no need to find the square. लंबी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसी से हम पता लगाएंगे. n प्लस 1 प्लस n, तो n प्लस 1 मेरा क्या है? 36 है. इट मीन्स दिस विल इक्वल टू 36 प्लस 35, दैट इज 71, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ दिस. इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 71. इज दैट क्लियर? टेकिंग द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नंबर 7. And the 7th property is sum of first n odd natural numbers. Sum of first n odd natural numbers will equal to n square. यानी कि फर्स्ट odd natural numbers हम लेते हैं. सपोज में आई एम टेकिंग 1 odd number 1 3 5 7 9 11 13 15. I am taking these are the odd numbers. Okay, अगर मैं इनका सम करूं तो 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15, तो वो सम क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले हमें n निकालना है. फर्स्ट n odd numbers, they are started from first. So count these numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. It means n is 8. It means n is 8. This is n na, so n is 8. It means this will equal to the square of
8 मीन्स इनका सम अगर हम करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 64। काउंट करेंगे, जितना n आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू द सम। क्लियर? लेट मी टेक द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। If M, N and P, if the property number 8, if M, N and P, there are three numbers, na? Three natural numbers. In a way such that the square of m यानी कि m का स्क्वायर प्लस द स्क्वायर ऑफ n विल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ p, यानी कि तीन नेचुरल नंबर हों और वो किस वे में हो कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर इक्वल हो तीसरे के। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर विल इक्वल टू द थर्ड स्क्वायर। इन दिस कंडीशन m, n and p all are Pythagorean triplets. All are Pythagorean triplets. The Pythagorean triplets यानी पहले दो का सम, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर इक्वल है थर्ड का स्क्वायर। इट मीन्स ऑल थ्री आर known as Pythagorean triplet. Pythagorean triplet. Okay, is that clear? Now the next property that is also depend on the triplets, the property number 9. Listen carefully. Pythagorean triplets are in the form. There are three members. Now in triplet means three members. M, N and P are three members. In three members, m always be greater than 1. m हमेशा जो है वो 1 से ग्रेटर होता है, so that the triplets are in the form. तो triplets जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? triplets 2m, m square plus 1, m square minus 1. ये तीन ट्रिपलेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग किसी एक ट्रिपलेट्स का मेंबर जो है, वन मेंबर इज 12, वन मेंबर इज इक्वल 12. तो फाइंड द अदर ट्रिपलेट्स. all three between the all three triplets, one member is 12. Find the other triplets. So first of all we will take this equal to m. So find the m that is 12 by 2, that equal to 6. So this is the value of m. So you need to find the m square plus 1, that means 6 square plus 1, that is 36 plus 1, 37, and other m square minus 1, that is 6 square minus 1, 36 minus 1, that is 35. So in a way 6, 37 and 35 are the Pythagorean triplet. It means the square of 6 plus square of 35 will equal to the square of 37. ये इस प्रॉपर्टी पे प्रूव हो जाता है. Is that clear? So these are the basic rules of the perfect square. Perfect squares में की प्रॉपर्टीज कहिए इनको या उनके रूल्स कहिए, ये कुछ एक रूल थे. इसके अलावा दो आइडेंटिटी हम इसमें यूज करने वाले हैं जो नंबर 10 पे मैं लिख रहा हूं. ओनली टू आइडेंटिटीज आर देयर. लुक एंड लिसन. द नंबर 10 आइडेंटिटी देखिए क्या है. a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. क्यों होता है? बिकॉज लिसन, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स द पावर 2, इट मीन्स इट इज मल्टीप्लाई 2 times. तो ओपन दिस मल्टीप्लाई
a multiply a, that is a square, a multiply by b, that is a plus b, b multiply by a, that is ab, and b multiply b, that is b square. Now a square, ab and ab, 2ab and b square, so you can write a square plus b square plus 2ab in the polynomial way according to the powers. Is that clear? In the same way, second property, second identity जो है, that is a minus b whole square, that will equal to a square plus b square minus 2ab. इसको भी आप इसी तरह से खोल के मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. These are the properties. I think you understand. If you have any doubt, you can write in comments. I will give you the solution of that problem. Okay, now we will start the exercise third B. Third B exercise हम यहाँ start करते हैं after the properties. So I am getting book, that is R.S. Agarwal. There are some questions I have. This is book. There are 7 parts in first question, and you need to do there. Give reason to show that none of the numbers given below is perfect square. नीचे जो नंबर दिए हैं इनमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस चीज का आपको रीजन देना है. और फॉर एग्जांपल मैं यही ले लेता हूं 5372. अब दिस नंबर इज एंड विद डिजिट 2 and the property of perfect square is if a number end with digits 2 3 7 8 will never a perfect square. तो यहां हम लिखेंगे this number will never perfect square. ये perfect square नहीं हो सकता. Why? because it is end with digit 2. Because this is end with digit 2. ये 2 पे एंड कर रहे हैं and this is the property. ये according to the property of the perfect square. According to property. प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये एंड विद दिस इज एंड विद डिजिट 2, सॉरी 2 मैंने नहीं लिखा, और ये इसकी प्रॉपर्टी है. क्लियर? फर्स्ट में आपको इसी तरह से देखना है, सभी आप कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. अब इवन का स्क्वायर इवन होता है 196 है, इट मींस दिस इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. तो लिखेंगे वहां पे 196, लिख देंगे दिस इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ड्यू टू द प्रॉपर्टी. नेक्स्ट आपके पास 441, दिस इज ऑड नंबर, तो दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी. फिर 900 आपके पास है, 900 2 zeros are there, the number of zeros is even, so this will also be the square of even number. In other way 625 is there, 625 it is odd number, so this will be the square of an odd number. So you can do. Let me start the question number 3rd. Question number 3rd we are taking which of the following are square of odd numbers. In this question we are searching the square of even number or odd number, and in next question we will search about the number which is the square of odd. So we can justify now here the 484, it is an even number, so this will be the square of even number. In 961 odd number, this will be the square of odd number. And the fourth question, question number 4th we are taking here. Fourth question, look there. Without adding, find the sum. Here the given first question is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. You need to find
तो look there, these are the first natural odd numbers ना, first natural odd numbers. So how many natural numbers are there? You find n. 1 2 3 4 5 6 7. So the sum of this will be the n square. It means n square means 7 square, that is 49. The sum of these numbers will be 49. You will count this 1 2 3 4 5 6 7. n is equal 7 हो गया, और हमें पता है कि n का स्क्वायर इसके सम के इक्वल है, तो n का स्क्वायर कर दिया. In the same way, all three parts you can do. Just I am taking some difficult type question. Question number 7 I am taking. Sorry, 6 का एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ. In properties you can do from there. I am taking 7 question. Question number 7. And 7 is 38 square minus 37 square. Look there, 38 square minus 37 का स्क्वायर. What will be? क्या होगा इसका स्क्वायर? कैसे फाइंड करेंगे? दो प्रॉपर्टी का बात तो मैंने आपको बता दी थी. अब इसमें आप क्या कर सकते हैं वो आपको देखना है. कैसे आप सजेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करते हैं, डिपेंड ऑन यू. चाहे तो आप अलग अलग से कैलकुलेट करके माइनस करें, चाहे तो आप, मैं चाह रहा हूं कि इसको आप मुझे करके दिखाएं कि आप क्या तरीका इसमें अप्लाई करते हैं. आफ्टर दैट आई विल गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज नीड टू नो योर नॉलेज ना. आप कौन सा अप्लाई करते हैं, इसको डायरेक्ट निकालते हैं, कुछ डायरेक्ट के लिए भी मैंने इजी से वे दिए हुए हैं आपको, या आप इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं. करना क्या चाहते हैं वो हम देखना चाहते हैं. यहाँ मैं एक प्रॉपर्टी और भी आपको हिंट के लिए लिख दे रहा हूँ. यहाँ प्रॉपर्टी दे रहा हूँ मैं, देखिए क्या होता है. एक होता है हमारे पास x प्लस ए, एक्स प्लस ए, और इनटू होता है x प्लस बी, एक्स प्लस बी. क्या इसका आप यूज कहीं इसमें कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आप इजीली अलग से कर सकते हैं. 38 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, आपको वे दिया है. 37 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिएगा. दोनों को निकाल सकते हैं. तो सारे क्वेश्चन इसमें इसी वे के हैं, आप करेंगे इजीली. 8 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा गया है. अगर इसमें कोई डाउट रहता है आपको, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आप यहाँ कोई डाउट रखते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे पता लगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं, और मुझे मौका मिले कि आपसे दूर रह के आपके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए. तो आइएगा, करके देखना है. 8 नंबर क्वेश्चंस हैं इसी तरह से. आपको दिया है 310 का होल स्क्वायर. हाउ टू फाइंड? देयर आर ways that you can write this number 300 plus 10 square. So this will be a, this will be b. तो I have given you the property a plus b whole square. अभी दिया मैंने क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो इसका आप यूज कर सकते हैं. यहाँ आपके पास हो जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स 300 प्लस b मीन्स 10. अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए. 3 3 जा 9, और टाइम 0 हो जाएगी, 2 टाइम है तो 10 का 100, और ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 0. अब इन सभी को आप ऐड कर दीजिएगा. देखिए 9 6 1 0 0. यू गॉट दिस. सम कर दीजिएगा. यू कैन डू, आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको. 10 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 10. यस, इसमें मैं कुछ और बताता हूं आपको छोटा सा, आप उसको देख लीजिएगा. ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ. तो डाउट रह जाए कोई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अपलोड में बड़ी दिक्कत आती है जब लंबी होती है तो आप लोगों के लिए. चलिए मैं एक और क्वेश्चन इसमें से उठाता हूँ. 9 नंबर आपका ले लिया था मैंने, नहीं लिया था शायद. 9 नंबर ले रहा हूँ. 196 का स्क्वायर. इसको यू कैन राइट इन दिस फॉर्म. इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं 200 माइनस 4 का स्क्वायर. तो यहाँ आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर
ये आपकी प्रॉपर्टी है, और ये होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ आप कर सकते हैं 200 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 4। ये आपका 2 2 जा 4, 2 टाइम 0 था, डबल हो गया, 4 टाइम हो गया, 4 16 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1600 हो गया। इनको ऐड करेंगे और ये इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 40016 माइनस 1600। इसको माइनस कर देंगे, 6 का 6 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा, 3 रहेगा। यू गॉट दिस। ओके, नाउ टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10 नंबर को ले रहा हूं मैं थोड़ी स्पीड जरूर चल रहा हूं, इसके लिए सॉरी। आज आपके साथ थोड़ा स्पीड से पेश आ रहा हूं, इसके लिए मुझे खेद है। इसको आपको करना है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ एक प्रॉपर्टी मैं दे देता हूं, नहीं दी है तो भी देख लीजिएगा जरा। अगर हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की कंडीशन पैदा होती है तो इट मीन्स इट विल इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस कंडीशन को यहां लाके हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए 69 इट मीन्स 70 माइनस 1 एंड 71 इट मीन्स 70 प्लस 1। इज दैट क्लियर ना? 69 70 माइनस 1 और 71 70 प्लस 1। तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, यहाँ a सेम है तो a प्लस बी a माइनस बी, यही कंडीशन आ गई। साइन इसका इधर, नो प्रॉब्लम। तो किसके इक्वल होगा, दिस विल इक्वल टू बी 70 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 70 का स्क्वायर यू नो एंड 1 का 1, इसमें से 1 माइनस कर देंगे आप। 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 8 बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर? तो आप कर पाएंगे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। 11 क्वेश्चन भी सेम है, 88 एंड 92 है। 88 इंटू 92, तो 88 को भी आप क्या लिख देंगे, 90 माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 2। सेम कंडीशन इज देयर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू कैन अप्लाई इजीली। नाउ देयर आर सम टीएफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, आप कर पाएंगे। बहुत अच्छे से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा आपको, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को कभी भी स्किप ना करें, हमेशा कंप्लीट देखें। बीच में क्या बताया जाता है, किस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना है, कभी भी स्किप ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।